Reviewing the product's architecture and design, इससे पहले हमने process of diligence जो है वो cover किया था searching for solutions में. So reviewing the product's architecture and design, the type of software and system required by the vendor, and overall architecture of the solution are extremely important issues, और इसको overlook नहीं किया जाता. Therefore, organization should do a complete platform review to ensure that the product will properly operate across all of their systems. So ये देखना ज़रूरी है कि आपके पास different platforms एक organizations के अंदर हो सकते हैं, उससे Linux हो, Unix हो, Windows हो या आसान operating system हो. So different operating system हो सकते हैं, platform हो सकते हैं. तो आपका जो काम, आपका जो project develop किया है वो सभी platforms पे जो है operatable है. So इस चीज़ को review करना बहुत ज़रूरी होता है. Organizations should be particularly sensitive when considering software that has not been demonstrated that it can successfully execute on a new or different architecture. तो जिस architecture अगर organization जो है उनके लिए बात जो है बड़ी sensitive issue matter रखता है कि आपका जो software है वो किसी नए architecture पे या different architecture पे वो work नहीं करता. So ये बात उनके लिए annoying हो जाती है. So your software should be operatable on multiple platforms, or it should be tested. Although we believe that we live in a world of open system, there are still products that are very dependent on specific version of operating system and specific system environments. So ऐसी product हैं अभी भी जो कि specific system requirement में सिर्फ operate होती हैं. जैसे कि Mac operating system है Apple वालों का, तो उस पे उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स बहुत स्पेसिफिक हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरली उस पे ऑपरेट हो सकती हैं. इसकी एक क्लासिक एग्जांपल मेरे ख्याल में मुझे याद आ रही है कि बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो मैक पे नहीं इंस्टॉल होते और वो उस पे काम नहीं करते. An example of this problem can be the example दी हुई है Cornwell's केस की against system Software Association Enterprise Solution Enterprise Resource Planning ERP product called Business Processing and Control System. Cornwells ने बेसिकली केस किया गया था सिस्टम SSA के खिलाफ. उन्होंने एक स्पेशलाइज जो ERP एक रिसोर्स प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था जिसका नाम बिजनेस प्रोसेसिंग कंट्रोल सिस्टम था. उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो it was originally designed to operate under the IBM mid-range product line. ठीक है, IBM की कुछ एक mid-range product line थी, उन्होंने पर्टिकुलर सिस्टम थे उन पे ऑपरेट करने के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन हुई थी BPCS, which are very proprietary platform. When the software industry began to transition to open systems, particularly Windows or Unix, SSA attempted to convert its product and advertise that its product can run under the HP US architecture. तो जब ओपन सोर्स का ज़माना आया तो उसमें विंडोज़ और यूनिक्स जो है वो पेश थे. उसकी वजह से जो अबव सिस्टम था वो सिर्फ एक IBM के मिड रेंज प्रोडक्ट लाइन पे काम करता था. तो इन दैट केस जो है वो जब SSA जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने जब अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना शुरू किया कि ये दूसरे आर्किटेक्चर यानी HP UX आर्किटेक्चर पे भी काम कर सकता है, रन कर सकता है. सो sorry. Cornwells selected the HP US environment, and although SSA stated it would operate, there were problems. ठीक है, Cornwells ने जब HP UX environment select किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो SSA की क्लेम के बावजूद कि ये HP UX आर्किटेक्चर पे काम करेगा, लेकिन वो काम नहीं किया उसने, उसमें प्रॉब्लम आई. Apparently, BPCS could only operate on HP US if the entire system was installed. अगर entire architecture install है फिर ही वो काम कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था.
अदरवाइज अगर कोई एक एंटायर सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो HP सो बेसिकली अगर ऐसा नहीं हुआ, BPS जो सिस्टम था वो उसके लिए एंटायर सिस्टम इंस्टॉल करना जरूरी था, वो सिलेक्टेड सिस्टम इंस्टॉल करने नहीं उसको सपोर्ट करता था. Unfortunately, Cornwell's only selected certain modules. Their product was significantly delayed by over a year, and eventually SSA declared bankruptcy in 2002. So प्रोडक्ट डिले होती गई और इवेंचुअली जब लॉ सूट या कोर्ट में गया केस तो SSA जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया 2002 में इस केस की वजह से. These type of results do not favor anyone. All sides tend to lose. So the message is that organizations should be very being the first to implement any packages on a platform that vendor cannot physically show success. So इस चीज़ों के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज जो दोनों साइड्स लूज करती है, लेकिन मोस्टली वो लूज करती है जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही होती है और उसको हैवी लॉ सूट्स या जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. सो इसको चीज़ को मेक श्योर करना कि आपका जो जो प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है वो सारे वो प्लेटफॉर्म का रिव्यू और उसकी टेस्टिंग करना प्रोडक्ट की वो इन टाइम कंप्लीट हो जाए ताकि वो जो टारगेट लोकेशन पे जब जाए तो वो काम कर सके. एक एक इसकी एक और क्या कहते हैं सजेशन हो सकती है कि आप यूज़ करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये बहुत अट्रैक्टिव होता है कि ओपन सोर्स जो है किसी की उसमें प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता, ठीक है, आपको प्रोहिबिट नहीं करता यूज़ करने से. कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन हो अगर उसमें कुछ आपको मॉडिफिकेशन करके अपना सिस्टम बनाना ही पड़े तो यू कैन ऑलवेज यूज़ कर सकते हैं. सो सो उसमें ये कि आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि ओके यू कैन नॉट मॉडिफाई आवर पैकेज, क्योंकि नॉर्मली जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं वो अंदर लाइसेंस और कॉपीराइट प्रॉपर्टी राइट के होते हैं, अंडर लाइसेंस में होते हैं और उसमें आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते एक हद से ज़्यादा. सो ओपन सोर्स की वजह से जो ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है अब, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बेहतर ये आसान हो गया कि वो अपनी वेंडर की जो लिए जो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट है वो कर सके. एक और जो इशू है वो है प्रोडक्ट स्केलेबिलिटी. ठीक है, शुड द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नीड to expand its use of packaged or customized solution, will the software be able to run across multiple platforms or on a larger system? कि अगर कोई सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी और ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि इसको हमें अपने आप को ग्रो करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए अपने सिस्टम को, तो क्या वो मल्टीपल सिस्टम्स पे या लार्जर सिस्टम पे वो आपका प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सकेगा. सो ये अगेन क्वेश्चन है आर्किटेक्चर का, और IT ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिव्यू करना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए पहले से ही कि अगर आपका जो क्लाइंट है वो ऐसा कोई ऐसी कोई बात करता है, ऐसा कोई इंटेंशन रखता है फ्यूचर में, तो उस लिहाज से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्केलेबल हो, वो एक्सपेंडेबल हो. सो इसमें एक सजेशन दी क्योंकि इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप कोई थर्ड पार्टी रिव्यूअर लें और वो आपके बेसिकली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस को या प्लेटफॉर्म की स्केलेबिलिटी को वो टेस्ट करे और देखेंगे ये क्या आपका अनबाइस्ड रिव्यू होगा और उससे आपके ये होगी प्रोडक्ट जो है वो एक बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेगी इन एवर एक्सपेंडिंग एंड स्केलेबल एनवायरनमेंट. फाइंडिंग वेंडर्स, हमने वेंडर्स के फाइंड करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए पहले डिस्कशन कर ली है, लेकिन इसमें ये कि ये एक अलग से कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे वेंडर्स की को फाइंड करने के लिए. ठीक है, जो आपकी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को मीट कर सके. तो आप नॉर्मली ये कि हमने डिस्कस किया पहले कि हम आउटसाइड कंसल्टिंग फर्म्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं ये वेंडर फाइंडिंग के लिए, और
फर्म को किसी आउटसाइड फर्म को हायर करना कि वो आपके लिए कोई वेंडर तलाश करे, उसके से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि उनके पास ऑलरेडी फर्म्स की एक लिस्ट होती है, वेंडर्स की लिस्ट होती है, और ना सिर्फ लिस्ट होती है बल्कि उनको पता होता है कि उनके रिलेशनशिप किस वेंडर के साथ कैसे है और कौन सा वेंडर कितना एफिशिएंट है और वो कितना अच्छा काम कर सकता है। और दूसरा ये कि वेंडर के साथ आप जब थर्ड पार्टी पे रिलाई करके इस सब वेंडर्स को हायर करते हैं, तो उसमें एक तो वेंडर्स आपको रिलायबल मिलते हैं, दूसरा ये कि आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी उस वेंडर के साथ इस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है। उसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ द कंसल्टिंग फर्म इन द सिलेक्शन ऑफ, उसके अलावा कंसल्टिंग फर्म जिसको आप यूज़ कर रहे हैं वेंडर सिलेक्शन के लिए, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एडवांटेज रादर देन कि आप खुद से जो है वो तलाश करें, विच इज़ अ लेंथी प्रोसेस, और इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। और अगर आप आउटसाइड फर्म को, कंसल्टेंट को नहीं यूज़ करना चाहते फॉर फाइंडिंग वेंडर्स, तो आप जैसा ऑनलाइन आप प्रोजेक्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से वेंडर फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप बिडिंग करवा सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट आप ऐसी हैं जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट लिखते हैं और वहाँ पे फिर बिडिंग होती है। आप और बिडिंग के अकॉर्डिंगली आप अगेंस्ट आप पोटेंशियल जो वेंडर्स होते हैं, उनकी जो है वो रेटिंग्स, उनके रिव्यूज़, उनकी उनके काम जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट होते हैं, उनको सबको देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक के अपने चैट रूम्स या पेजेस हैं जहाँ पे आप यही काम कर सकते हैं। आप उधर एडवर्टाइज करें और वेंडर्स को वहाँ से तलाश कर सकते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री ग्रुप्स होते हैं, हर शहर में एक इंडस्ट्री ग्रुप या इंडस्ट्री के कोई ना कोई सेटअप होता है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल हो। तो इंडस्ट्री ग्रुप्स में आप ये बात सर्कुलेट कर सकते हैं, वहाँ से आपको वेंडर्स, पोटेंशियल वेंडर्स मिल सकते हैं बाय पब्लिक रिलेशन। ठीक है, उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस में या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पे आपको स्पेशलाइज और आईटी प्रोफेशनल्स मिल सकते हैं, और वो आप उनके काम को देखकर आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर कर सकते हैं। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो रिसर्च बेस्ड होती हैं, और वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकती हैं उस प्रोजेक्ट पे, और आपका आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकती हैं। और ये अमूमन जो है वो लोअर कॉस्ट में कंप्लीट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल वेंडर्स, प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। और एक और जो इंटेलिजेंट या क्लेवर अप्रोच है इस सिलसिले में, वो ये है कि आप जो है राइट वेंडर तलाश करने के लिए किसी एक थर्ड पार्टी को या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एक थर्ड पार्टी को पे करते हैं, और वो आपको राइट वेंडर चूज करके देता है। ठीक है, और आपको पूरा प्रोजेक्ट प्लान भी बना के देता है। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट प्लान और सोल्यूशन, वो सारा कुछ प्रोजेक्ट ही आप पूरा एक तरह से पूरी एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो but these efforts should be set up as a prelude to evaluating the effectiveness of the vendor and the ability to deliver requested tasks. इस अप्रोच की डाउन साइड ये है कि इट विल लाइकली कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन मनी। इससे पैसे लग सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। उसके अलावा you may need to pay the vendor to do this extra work. However, it may be well worth the expense to become familiar with how the vendor support you. In many cases, you can negotiate an option with the vendor which credits the payment should they win the bid. That is, the steps being taken would need to be done by the selected vendor anyway. Another downside could be that cost and effort do not necessarily allow the organization to determine the quality of software and ultimate value of the solution, but it is yet another option to consider. ठीक है, सो बेसिकली ये पेइंग फॉर अ प्लान का मतलब है कि आप वेंडर को ही पे करते हैं कि वो हमें मजीद प्रोस्पेक्टिव वेंडर सजेस्ट करे जो कि हमें पूरे प्रोजेक्ट का प्लान दे। ठीक है,
और उस प्रोजेक्ट के प्लान में उसके कुछ देने में कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये कि आपको प्रोजेक्ट का प्लान खुद से नहीं करना पड़ता, ठीक है? और डाउन साइड ये है कि यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट आउट ऑफ द बजट। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है? आपको वेंडर को अलग से पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम देयर सर्विसेज, दे एक्स्ट्रा सर्विसेज, एक्स्ट्रा वर्क के लिए उनको पे करना पड़ेगा। और एडवांटेज ये है कि इससे आपको पता लग जाएगा कि वेंडर आपका जो है, करंट वेंडर, वो आपसे कितना कमिटेड है कि वो आपको मजीद प्रोस्पेक्टिव वेंडर जो है वो ला के दे रहा है। उसके अलावा ये कि इसमें एक जो इशू आ सकता है वो ये है कि आपके जो क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है, क्वालिटी ऑफ द प्लान है, या क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर है, वो डिटरमिन करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि आप किसी अपने वेंडर पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो एक प्रोस्पेक्टिव वेंडर को सजेस्ट करे, तो इट मे पॉसिबल कि वो जो प्रोस्पेक्टिव वेंडर है, ही और शी, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गुड इनफ फॉर यू, और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। सो इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यू आर जस्ट ट्रस्टिंग योर वेंडर कि वो किसी और को सजेस्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए। सो क्वालिटी के लिहाज से इसमें इशू आ सकते हैं। सो ये मेरे ख्याल में हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, आई गेस, यस। और या एनी क्वेश्चन यहाँ तक, कोई सवाल? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे हैं असाइनमेंट का, मुझसे पूछे हैं असाइनमेंट का जो है वो